So is it visible? Yes. Yes, sir. Okay, fine. Thank you. So now in previous class we have discussed about the functional dependencies. What is functional dependencies? And and functional dependency, and we have seen how we have to see the valid, or how we have to validate the functional dependency. Is there, or we can check a given functional dependency are valid or invalid. After that we have discussed for the identification of our additional functional dependencies based on the inference exome rules or some rules. Okay, like transitive property, reflexive property, pseudo transitivity. Okay, so all these rules we have seen, and after that we have seen the most important thing, closure set of functional dependencies, and then closure set of attributes. Okay, so these basically four things we have covered in the previous class. Now in this class we are going to cover how to identify a key or keys in a for the given set of FDs, and then how we have to you or identify the canonical cover for the FDs. Okay, so first of all we will be going to focus on the identification of the key. Okay, so as we know, uh, what is a key and super key? In the lecture class, in the previous class we have also discussed. Now I'm again repeating the slightly these things. Okay, so what is key? For the given table or relation, suppose this is a relation, a student relation. Okay, okay, so for this relation, if you are going to see uh, what is the attributes that can be used to uniquely identify the each and every entity or student in this table. So in the given example you can see, if I am going to call Ajay, so if you are going to call Ajay, then Ajay, there is a two Ajay, like one is with 101 roll number, another one is with 106 number. So it is very difficult to exactly call a particular or a specific student with the name of Ajay. So instead of it, if I call him with using the branch or name, like if I call name and branch combination, like I call Ajay with ENC, so it is a once only one student, then I can call, so that only this Ajay will be responded. Okay, so in this case it is easy to call or identify a student using the name and branch combination. Instead of name or branch, if I call this same student or with the roll number, then you can see easily identify each and every student in this table or in the class. Okay, as roll number for every student is unique, here name and branch combination is unique. Further, you can see roll number is unique, so either I can call the student using name or branch or roll number. Okay, for in this table you can see roll number can also be utilized along with the name to call a student. Still we are able to identify or uniquely identify a student in the class, but the roll number is alone sufficient. If we are including name also, then it will also be able to identify uniquely a student in the class. Okay, so here whatever the combinations of attribute like name or branch, roll number alone, roll number name, or roll number branch, all these unique combinations are called as a key or super key. Okay, so these things we call it as a super key. So super key or key is an attributes or set of attributes. Okay, set of a single attribute, it may be a single attribute like roll number, or set of attributes where we can utilize these values to uniquely identify an entity in the entity set. Is it okay? So I think the terminology key or super key, it is clear to you. Okay, now in this case you can see, if we are including roll number or name, that can uniquely identify a student in the or in the class. But if I call it with the roll number name or roll number alone, then it is sufficient to uniquely identify. But in case of name or branch, if I only call a student using the name or branch, then we cannot identify. So combination like name and branch
cannot be further, name or branch cannot be further decomposed or cannot be individually, we cannot use name or branch. But in case of roll number or name, though roll number or name is uniquely identified, this can be used, this can be, but this can be alone is sufficient to uniquely identify, but this is not. So in this case we can decompose these two attributes in a one attributes to uniquely identify, but in this case we cannot do, we cannot decompose. So here it is mandatory to use both the combination, but here it is sufficient to use roll number alone, है ना? So what is the minimal number of attributes that are required to identify an entity in the antecedent set? That is called candidate key, है ना? So it is defined as a whose the super key whose proper subset cannot occur key, means it is a super key, as this is a key or super key, name and branch, it is a key, super key. But if we are creating it super, if we are creating proper subset of this, then in that case proper subset of name or branch will be name alone and branch alone. Okay, so either name cannot be a key or branch cannot be key. It means its proper subset cannot be a key. It means it is a super key as well as it is a candidate key. Okay, but in this case it is a super key, it is a super key, but it is not a candidate key. So but here roll number it is a candidate key. Okay, so roll number it is a candidate key as well as a super key. Okay, so every candidate key is a super key, but every super key is not a candidate key. So you can see with the example here with the pictorial representation what is super key and candidate key. You can see this circle I have made here, dotted are representing one key. So all the keys are a super key, either it is candidate key or not. Okay, so there may be multiple candidate key. For this example you can see name and branch combination, it is a one candidate key. Okay, one candidate key is a name and branch. Okay, name and branch it is a one candidate key, and roll number it is a one candidate key. So one of them will be used for identifying the relation, because only one key will be practically used for the implementation purpose. So that candidate key will basically work as a primary key. Out of, suppose for the example, three are the candidate key in a given relation. So from these three we are only able to select one key for the manipulation of the table. That key basically called as a primary key. So primary key it is a candidate key which is selected for the manipulation of the table or database. Is it okay? A remaining candidate key, like here two keys are remain, so these keys are called as a alternate keys. Is it okay here? So this is a very important things that are mainly used or mainly asked by the interviewer in the interview, है ना? So you have to aware about these things. So now in onward we are going to call every key as a candidate key whenever we will talk in the later class or later lectures. So it will be assumed we are talking about the candidate key. Is it okay? If I am going to identify a key in a relation or keys in a relation, that we are mainly talking about the candidate key, not as a super key. Is it okay? Okay? हाँ भाई. Yes, sir. Okay na? Fine. Is there any query? No? No, sir. Okay, thank you. So now how to identify a key in a given relation? So key will be always functionally determine every attribute of the table, as he can identify every attribute of the table. So keys basically, keys means we are not talking about super key, we are talking about the candidate key. Is it okay? So candidate key we always functionally determine every attribute of the table. In the previous example, if you see, so we can create a relationship of functional dependencies like roll number can functionally determine name, and roll number can functionally determine branch, and or roll number can functionally determine name also, or sorry, roll number also. Okay, so we can also make a one dependency based on these things. Roll number can also determine roll number, name, and branch. So these dependency you can infer from here. Okay, similarly you can identify a dependency like name
and branch combination can identify roll number, name and branch. Is it okay? As this is a candidate key. So keys always determine every attribute of the table. So because keys are the set of attributes whose value will be unique in the different tuple of the relation. Okay, so now for the given example, you have to find out a key, candidate key. How many candidate keys are there? So please, all of you, प्लीज स्टार्ट, बताओ कैंडिडेट की कौन कौन सी है इसमें. यू कैन क्रिएट अ कॉम्बिनेशन, आइदर ए में भी कैंडिडेट की, बी में भी कैंडिडेट की, सी में भी कैंडिडेट की, डी में भी कैंडिडेट की, और कॉम्बिनेशन चेक करो. ए बी कैंडिडेट की है क्या, ए सी कैंडिडेट की है क्या, ए डी कैंडिडेट की है क्या, ए बी सी कैंडिडेट की है क्या. यू हैव टू चेक एंड यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द कैंडिडेट की फॉर दिस रिलेशन. यू हैव टू आइडेंटिफाई. ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपको, ठीक है. सो प्लीज चेक इट. Should I tell you once, then you are able to do? एक तो ए बी हो जाएगी. A B will be a candidate key. Okay. How are you saying? सर क्योंकि सेल्फ को तो आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं, तो ए और बी को तो आइडेंटिफाई कर ही A B आ गया, that is good. If so, it means whenever you are going to identify a candidate, you have to first identify the closure set of the attributes. Is it okay? If a closure set of attributes contain all the attributes of the table, then we can say that set of attribute is a candidate key. Note it down. If a closure set of an attribute or attributes contain all the attributes of the table, then that set of attributes basically called as a key or candidate key. Okay, but that attribute should be minimal, है ना, whose proper subset cannot be a key, then we can consider it as a candidate key. Okay, so in this, if you have to also check if A is alone able to identify all the attributes, then in that case AB will not be a candidate key, A will be a candidate key. Is it okay? Are you clear? मैं क्या कह रहा हूं? Okay, Jatin? Yes, sure. Okay, ठीक है. तो ए बी, इन केस ऑफ ए बी यू हैव टू चेक ए बी क्लोजर सेट ऑफ ए बी. सो ए बी विल बी देयर एंड ए बी इज आल्सो आइडेंटिफाइंग सी, सो सी इज आल्सो देयर, and C is also identifying D, so D will be also there, and D is further identifying A, so A is already there, so then the closure set of AB will be this. So AB is identifying all the elements or all the attributes of the table, then it means AB can be a key. But we have to check, A can identify, then A can identify, then AB cannot be a key, B will be, or A will be a key. So we have to also check for the A. Closure of A will contain only A. Is there any other one? No, नहीं ना, कोई नहीं है ना, ठीक है. No, sir. तो चलो B को चेक करो, अकेले को. B का है? No, sir. नहीं है. C को चेक करो. C आ जाएगा, Sir, C D आ का D. जाएगा, A आ जाएगा, No, और कोई आ जाएगा? no, sir. नहीं. तो अब इट मींस A B तो कैंडिडेट की है ही है. ए बी का निकालोगे, अब ए बी का कॉम्बिनेशन कैंडिडेट की हो सकता है ना, तो वो है. इज इट ओके? क्योंकि एक की अकेला नहीं है, बी की अकेला नहीं है, तो ए बी की होगा. तो एक तो ए बी आ गया. दूसरा क्या है, और कोई एनी अदर कैंडिडेट की है? यू कैन चेक. इज देयर एनी अदर कैंडिडेट की इन दिस रिलेशन? तो आपको सारी की सारी की आइडेंटिफाई करना है. हमेशा सारी की सारी पूछी जाएंगी, कितनी पॉसिबल है. कोई दूसरी कौन सी हो सकती है, बताओ. मतलब खुद की नहीं बना सकते हैं, जैसे उसमें कोई मतलब वो नहीं दिया हुआ कॉम्बिनेशन, तो खुद हाँ से हाँ 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 बिल्कुल. तो सर फिर एक बीसी भी की पॉसिबल है. बी सी. अब बी सी में अपन क्या निकालेंगे, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, और डी आ जाएगा, ए आ जाएगा. वेरी गुड, ये भी की है क्योंकि इसका क्लोजर भी है, तो ये भी. और भी है कोई, बताओ भाई. इज देयर एनी अदर की? और कोई नहीं है, बताओ.
नहीं नहीं ढूंढ पा रहे हो यार? अलग दिख रही है, सिंपल सामने ही दिख रही है। यस, एनीबडी? नहीं दिख रही? यस और नो तो कुछ तो बोल दो यार। नो सर। ओके देखो, एक और वैसे देखी जाएगी, अभी मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, बी डी चेक करो। बी आ जाएगा, डी आ जाएगा, डी से क्या मिल जाएगा हमको? ए। डी से ए मिल गया तो ए बी से क्या मिल जाएगा? सी मिल जाएगा। यस सर। तो बी डी भी तो की हो गए। अब आपको एक शॉर्ट ट्रैक बताता हूँ की देखने सर का। सी भी हो सकती है। क्या? सी डी। सी डी, चलो सी डी को चेक कर लेते हैं। सी डी वैसे होगी नहीं, सी और डी और ए, बी कैसे आएगा? जैसे सर हमने बीडी के लिए ए बी वाला यूज करके सी पे गए थे। हाँ, लेकिन अब बी पे जाने के लिए और कोई है ही नहीं। रीजन मैं बताता हूं, वेन एवर यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई एन की, पुट द डिपेंडेंसीज लाइक दैट, ऐसे पुट लिख लेना और चेक करना। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ये क्या है, गेट एग्जाम वगैरह ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए जाते हैं तब यूज होती है। सी टेंस टू डी, डी टेंस टू ए, देखो फटाफट आइडेंटिफाई कर लोगे। ये है ना सेट, 3 आर द डिपेंडेंसी, चेक द एट्रीब्यूट्स व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन द आरएचएस। ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है जो आरएचएस में नहीं है? आप चेक करो, बी नहीं है, तो ये गारंटी है जो भी की बनेगी वो बी के साथ ही बनेगी, ये गारंटी है। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता जिसमें बी ना हो। इट मींस बी विल बी अ पार्ट ऑफ अ की, ये गारंटी है, क्योंकि बी को कोई डिटरमाइन ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब बी को तो तुमको की में रखना ही पड़ेगा, ये गारंटी है। तो सबसे पहले हमको बी से ही स्टार्ट करना चाहिए। अकेला बी है क्या? बी अकेला बन ही नहीं रहा है, क्योंकि बी ए बी के कॉम्बिनेशन के साथ में आ रहा है। इट मींस हमको बी को तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा। बी को ए बी के साथ में किया तो सी आ गया, सी से डी आ गया, ए आ गया, तो इट मींस एक ए बी की हो गई। अब बी किसके साथ में कॉम्बिनेशन बनाए तो सारे के ही बन जाए। इट मींस चेक कर सकते हो आप कि बी से हम अगर सी का बनाए तो सी डी पे पहुंच जाएंगे, और डी से ए पे पहुंच रहे हैं तो बी डी का की बन जाएगा। और बी के साथ में सी को मिलाएं तो सी से डी, डी से ए, तो बी सी भी कॉम्बिनेशन बनेगा। फटाफट आइडेंटिफाई कर लिया कि नहीं कर लिया हमने? है कि नहीं? सर बीडी भी बन सकता है। हाँ है ना, बीडी की यस। बन नहीं सकता, बीडी की है। ओके, आप देखो ना बीडी के क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट आ गए कि नहीं आ गए? इज इट ओके ना? यस। तो हो गई होगा बीडी की। तो 3 आर द कैंडिडेट की है इसमें, 1 2 3, मतलब ए बी बी सी एंड बी डी, दीज आर द कैंडिडेट की है ना? तो 3 कैंडिडेट की है यहाँ पे, और आपको ऑल आइडेंटिफाई करना होता है हमेशा, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। बट जब आप सब्जेक्टिव पेपर में करने जाओ तो स्टेप प्रॉपर मेंशन करना कि इसमें ये है, ये क्यों नहीं है ना? रीजन इज आई हैव ऑलरेडी स्पेसिफाइड दैट ए बी सी कैन नॉट बी अ की एज ए बी, मतलब बी डी का प्रॉपर सबसेट क्या बनेगा? बी और डी, तो बी ऑलरेडी की नहीं है और डी ऑलरेडी की नहीं है, ठीक है। डी का क्लोजर निकालोगे तो डी का क्लोजर क्या आएगा? डी आ जाएगा, ए आएगा, और कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल एलिमेंट ऑलरेडी की नहीं है, दैट्स मींस वी हैव टू मेक अ की एज अ कंपोजिट की। कंपोजिट की मींस मल्टीपल एट्रीब्यूट विल बी देयर, है ना? ओके, यस सर। नाउ दिस इज एक्सरसाइज फॉर यू। अब तो इसमें आइडेंटिफाई करना, गलत मत करना। गेट एग्जाम में बहुत आता है ये क्वेश्चन। वो ऐसे ही दे देते हैं और पूछते हैं कैंडिडेट की बताओ कितनी है, नंबर ऑफ कैंडिडेट की पूछ लेते हैं, और गलती से कई बार अपन एक आध छोड़ दिए तो गलत लगा के आ जाते हैं आंसर। और ऑप्शन में सब रहते हैं, 1 2 3 4 ऐसे दे देंगे 4 ऑप्शन, और सब होंगे उसमें, आप गलत लगा देते हो। फिर बताओ सर ए बी और ए डी। ए बी ए डी। ए डी, एनी अदर? अब देखो लास्ट में अगर देखना होगा तो इसमें वही पहले जैसा ही क्वेश्चन है ये। तो A is not presented in the right side of the functional dependency, that means A must be a part of the key।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक एलोन ए एज ए विल बी क्लोजर ऑफ ए, क्लोजर ऑफ ए निकालोगे तो ए ही निकलेगा और कोई नहीं आएगा। इट मींस की विल बी कंपोजिट। तो हमको चेक करना है, एक कॉम्बिनेशन चेक करो ए बी का, तो ए बी का कॉम्बिनेशन चेक किया, ए बी के क्लोजर में ए आ गया, बी आ गया, बी से सी आ गया, सी से हमारा और कोई आ रहा है नहीं। अब बी से निकाल के देखो, बी से निकालोगे तो डी भी आ जाएगा आपका, डी भी आ जाएगा और सब आ गए, सब आ गए। इट मींस इट इज अ कैंडिडेट की। दूसरा चेक करके बताओ कौन सा होगा। ए के साथ में मैं डी भी लगा दूं तो देखो ना, क्यों हो जाएगा कि नहीं? यस सर। अरे दिख रहा है ना, डी से बी आ गया तो ए बी जैसा कॉम्बिनेशन बन गया ना, ए डी बी और ए बी आ गया तो सी भी आ गया। जैसे पहले बी डी बना था ऐसे अब ए डी बन गया। तीसरा बताओ कोई और है? यस बताओ भाई। अच्छा इसमें एसी, एसी बनेगा? नो सर। एसी बन जाएगा? No, निकालो sir. क्लोजर, ए आ जाएगा, सी आ जाएगा, ए और सी से कोई और आ रहा है नो सर। तो फिर एसी नहीं होगा ना, दिस इज नॉट अ की। और कोई बताओ? ए बस बी सर चेक कर लिया, ए डी चेक कर लिया, ए सी चेक कर लिया, और तो कोई बचा नहीं ना, बस सर यही बनेंगे, मतलब वही बनेंगे ना। इट मींस ओनली 2 पॉसिबल कैंडिडेट कीज आर देयर, है ना? इज इट ओके? इसमें 2 ही हैं। ओके यस सर। नेक्स्ट इसमें बताओ जल्दी। ऐसे लिख लो, ज्यादा दिक्कत है तो। बाई टेंस टू जेड, जेड टेंस टू वाई एंड जेड टेंस टू डब्ल्यू एंड जेड टेंस टू डब्ल्यू 2 बार लिख दिया है सॉरी, एंड वाई टेंस टू पी। सब आ गए? अब इसमें बताओ कौन सा ऐसा है जो राइट साइड में प्रेजेंट नहीं है? एक्स नहीं है। इट मींस एक्स विल बी अ पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की। आप देखोगे एक्स किसी भी डिपेंडेंसीज में नहीं है, ये 2 बार रिपीट हो गई है, एक लिख कम कर देना ठीक है। एक्स किसी भी डिपेंडेंसीज में नहीं है तो एक्स तो की का पार्ट होगा ही होगा, ये गारंटी है। इफ एन एट्रीब्यूट इज नॉट प्रेजेंटेड इन a dependency and it is given in the relation, that means it will be a part of the key। ये गारंटी, ऐसा क्वेश्चन गेट में आ चुका है। ये उनने क्या किया, लोग क्या करते हैं वो यहीं से की ढूंढते हैं और रिलेशन को भूल ही जाते हैं, तो उसका गलत हो जाता है। अभी इसके हिसाब से की देखोगे तो आप क्या करोगे, बाई का क्लोजर निकालोगे, चेक करोगे तो बाई का क्लोजर चेक करो क्या आ रहा है, बाई आ गया, जेड आ गया, जेड आ गया तो डब्ल्यू भी आ गया, और डब्ल्यू आ गया तो पी कैसे आ जाएगा, बाई आ गया तो पी भी आ गया। तो आप देखोगे सारे एट्रीब्यूट्स आ गए जो डिपेंडेंसीज में गिवन है। इन द सेट ऑफ डिपेंडेंसी द एट्रीब्यूट्स आर गिवन आर इन द क्लोजर ऑफ द बाई। सो यू विल से, आपने ऑप्शन में दिया होगा बाई की है तो आप फट से बाई लगा के आ जाओगे। समझ में आ रहा है? यस सर। है ना? जबकि बाई की हो ही नहीं सकता, बिकॉज एक्स तो डिपेंडेंसी में नहीं है तो एक्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, तो एक्स बाई की बनेगा। ठीक है, अब इसमें बोला जाएगा कि नंबर ऑफ की आइडेंटिफाई करो, तो बाई के अलावा और कौन सा बनेगा, बाई के अलावा और कोई बनेगा बताओ? देखो जेड बाई को आइडेंटिफाई कर रहा है तो जेड भी तो बनेगा। तो आप देखोगे जेड आ जाएगा, जेड से बाई आ जाएगा, बाई आ गया तो फिर से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, पी, और जेड आ गया तो डब्ल्यू भी आ जाएगा, तो जेड भी तो बनेगा। तो एक एक्स जेड की बन गई। और बताओ जेड के अलावा डब्ल्यू चेक कर लो। और एक और आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, जो एट्रीब्यूट लेफ्ट में प्रेजेंट नहीं है, जो एट्रीब्यूट लेफ्ट में प्रेजेंट नहीं है डिपेंडेंसीज में, देखो डब्ल्यू लेफ्ट में नहीं है ना, तो ये की हो ही नहीं सकता, ये की का पार्ट ही नहीं हो सकता, क्योंकि एट्रीब्यूट जो किसी को डिटरमाइन करेगा वही तो की बनेगा, है कि नहीं? यस सर। ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं। तो यहाँ पे आप देखो डब्ल्यू तो है ही नहीं ना लेफ्ट साइड में, इट मींस डब्ल्यू कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ द की, है ना? Same as P cannot be a part of the key. बिल्कुल बिल्कुल सही, P
P cannot be a part of the key because P is not determining any other attributes. But X तो होगा because X इसमें डिपेंडेंसीज में नहीं है ना? Yes, sir. ठीक है, so that two only possible keys हुई ना, X by और X Z. ओके सर अभी हमने ये कहा कि जो लेफ्ट साइड में नहीं होगा वो कभी भी की में का पार्ट नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बताओ सर बट मान लो अगर हम लास्ट का रिलेशन हटा देते हैं which is हाँ, y then- tends to then- p, then it is mandatory to keep P in the key. Is it okay? Okay ना? ओके सर। ठीक है ना, जिस सिमिलर टू X. ओके ठीक है ना? इसका मतलब क्या है पता है? X खुद ही को डिटरमाइन कर रहा है, X को कोई डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहा। इट मींस व्हेनेवर we are going to determine X, that it is mandatory to keep X with some other attributes. इसका मतलब ये, that's why X tends to X कोई डिपेंडेंसी जो है नहीं और वो लिखी भी नहीं जाती है ना, वो बाय डिफॉल्ट होती है ना। P tends to P, ये डिपेंडेंसी बाय डिफॉल्ट होती है। एवरी एट्रीब्यूट डिटरमाइन इटसेल्फ, ऑलवेज, हमेशा डिटरमाइन करेगा। ठीक है, ये डिपेंडेंसी हमेशा रहती है, तो उसको लिखा नहीं जाता है। इज इट ओके? दैट्स व्हाई। ओके चलो एक और करो। इसको ऐसे लिख लो, ज्यादा दिक्कत है तो आप BC CD E and E tends to C, D tends to AEH and ABH tends to BD and DH tends to BC. इसमें देखो रिलेशन दिया हुआ ABCDEH। That H will be present in every key. हाँ तो H है तो H तो हो भी सकता है की का पार्ट और नहीं भी हो सकता है, तो कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अब आप बताओ ऐसा कोई एट्रीब्यूट्स है जो लेफ्ट राइट साइड में नहीं है? सबसे पहले वो देखो, कोई एट्रीब्यूट है? A है, B है, C है, D है, सारे के सारे हैं। अब आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? लेकिन एक और शॉर्ट ट्रिक देख सकते हो जल्दी करने के लिए। देखो जो सबसे छोटा एट्रीब्यूट है जो सबको आइडेंटिफाई कर रहा है उसको सबसे पहले की में चेक करना चाहिए सबसे पहले। जैसे कि D है, AEH को आइडेंटिफाई कर रहा है कि नहीं? Yes, तो आप sir. सबसे पहले D को चेक करो दूसरों के अलावा। ठीक है, तो D का क्लोजर सेट निकाला तो D में D आ गया, और D से क्या आया? A आ गया, A आ गया, E आ गया, H आ गया। H के अलावा अब देखोगे E आने से C भी आ गया। ठीक है, और C D से E आ से गया, भी आएगा। है ना? अब C आने से DH आने से कौन आ गया? BC आ गया, तो B भी आ गया। कोई छूट गया? No, sir. सब आ गए ना? Yes, sir. तो D एक की निकल आएगा। और कौन सा हो सकता है ऐसा एट्रीब्यूट? देखो अब शॉर्ट ट्रिक ऐसा देखो, D हो साथ में और या D को कोई डिटरमाइन कर रहा हो, कौन बन सकता है कॉम्बिनेशन? देखो देखो DH. नहीं, DH अब सुपर की हो जाएगा। Okay. अब D का जो भी कॉम्बिनेशन बनाओगे ना सब सुपर की होंगे, तो D को चेक नहीं करो, D से जो आइडेंटिफाई हो रहा हो, D के साथ में हो ऐसा कुछ दिख रहा है? D जिसको आइडेंटिफाई कर रहा हो, तो D किस किस को कर रहा है? एक तो E को कर रहा है, एक AEH को कर रहा है। अगर AEH पूरे को चेक करूं तो की हो सकता है, AEH तो की होगा ही होगा, 100% है, क्योंकि D उसको डिटरमाइन कर रहा है। देखो चेक करो, AEH को चेक करो, A हो गया, E हो गया, H हो गया, A से B और C भी आ जाएंगे। A से B और C भी आ गए, और B और C आ गए, तो और कोई आ रहा है? और C. ABH से क्या आ गया? D आ जाएगा। जब D आ गया तो सभी आ गए, Yes, sir. ABCD। ठीक है, हो गया। AEH की है, लेकिन AEH के साथ में आपको AE को भी चेक करना है अकेला, क्योंकि हो सकता है AE अकेला की हो,
क्योंकि एक सुपर की बन जाएगा अगर ए अकेला की हो गया। तो ए को चेक करो तो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, ई आ गया, ये आ गया, और ई आ गया तो सी भी आ तीसरे। गया। हाँ, अब और डी कैसे लाओ, और कोई कैसे लाओगे? डी कहां से डिटरमाइन हो रहा है? डी डी एच से हो रहा है, नहीं सॉरी, डी कहां से हो रहा है? डी एक तो सी ए डी। बी एच चाहिए आपको, तब आएगा। बी कैसे आएगा? नहीं आ रहा। एच कैसे आएगा? एच या तो डी से आएगा, एच ओनली डी से ही आ रहा है और कहीं से आ ही नहीं रहा है ना, यस सर। तो डी आ जाना चाहिए। तो ए ई की नहीं है ना, ओके। तो ए एच चेक कर लो। ए एच, ए हो गया, बी हो गया, बी सी। सी एच, है ना। अब बी एच और कुछ बन रहा है कॉम्बिनेशन, सी डी, डी कैसे आएगा? डी आ जाएगा, ए बी एच आ गया। ए बी एच से बी डी आ जाएगा। हाँ, ए बी एच आ गया तो क्या आ जाएगा? बी डी। अब डी आ गया तो सभी हो गया काम। तो इसका मतलब अभी ये की नहीं है, हाँ। ये की है, ए एच। इज इट ओके? ठीक है, समझ में आ गया ना? इन दिस वे सर आपने लास्ट वाले में ई नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा? ई मतलब वो सी डी से ई आएगा। अब सी डी आ गया, इसीलिए मैंने नहीं लिखा था, क्योंकि डी आ गया तो अब आ ही जाएगा। ओके, इज इट ओके ना? यस सर। अब दिक्कत है तो ई एच को चेक करो। ई आ जाएगा, एच आ जाएगा, सी आ जाएगा। ई आ गया, एच आ गया, सी आ गया, सी आ गया, और कोई? और नहीं। अब नहीं आ रहा। डी के लिए दिक्कत है, क्योंकि डी के लिए ये कॉम्बिनेशन चाहिए आपको। ये कहां से आएगा? ये नहीं आ रहा ना? नो सर। नहीं आ रहा ना? सर ए बी एच को चेक कर सकते हैं? ए बी एच को चेक कर सकते हो, बिल्कुल सही। तो ए बी एच को चेक कर लो, बिल्कुल सही, क्योंकि ए बी एच इसका सबसेट नहीं है ना, इसलिए ए बी एच को चेक कर सकते हो, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ए चेक करो, बी आ गया, सी आ गया, एच आ गया, ये तो डी इतना आ तो। जाएगा और और ई आ बी, जाएगा। और सर बी ए बी ABH एच, को ए चेक बी क्यों एच कर से रहे बी हैं? डी आ जाएगा। ए बी एच के संग डी आ जाएगा ना, यस सर। और डी एच से बी सी बी सी तो है ही। बी सी। अब बचा क्या? सब डी आ गया तो सभी आ जाएंगे, आ गया। यस यस सर। है ना। तो Yes, अब ए बी एच का पार्ट आपको चेक करना पड़ेगा पहले। यस सर, वो AH तो बन ही जाएगा, तो AH तो हमने कंसीडर कर ही लिया था। हाँ, ए मतलब एच की है ना, तो बिल्कुल सही। सॉरी, ए एच जब अपन ने चेक कर लिया, तो अब ए एच को आप चेक, ए बी एच को चेक करोगे तो वो तो सबके ए एच के साथ में जो भी कॉम्बिनेशन बनाओगे सब की होंगे, तो ये की में कंसीडर नहीं होगा, बट ये सुपर की होगा। ये क्या है? ये सुपर की तो है, बट कैंडिडेट की नहीं है। हमको चेक करना होता है तो कैंडिडेट की चेक करेंगे, तो इट इज नॉट अ कैंडिडेट की, इट इज अ सुपर की, है ना। तो हमेशा जो बात होती है वो कैंडिडेट कीज की होती है। इफ डिफॉल्ट इट इज रिटन दैट आइडेंटिफाई द की, दैट इट मींस यू हैव टू आइडेंटिफाई द कैंडिडेट की, नॉट अ सुपर की। ठीक है, ये अज्यूम करके चलना हमेशा। ठीक है, whenever we will talk about key, that it means we are talking about candidate key, not about super key. super key तो इसमें ढेर वर्ग की बन जाएंगी ना। ओके, अब आई थिंक नहीं होगा कोई, चेक कर लो। ठीक है, ओके यस सर। ओके, ठीक है। चलो, ये दिस इज अबाउट for checking or identifying a key in a relation. Now next use of closure set is identifying the equivalence of the FDs. If we want to check two set are equivalent or not, how we can check it? Okay, so you can go with this example, you can check if these two set are equivalent or not. So in order to check, we have to check if F1 F2 are said to be equivalent, then all FDs in F1, whatever the FDs we are checking, that in F1 must be covered by F2, and all FDs in F2 must be covered by F1. So it is a vice versa, whatever the FD is covered by F1, that will be also covered by F2, and whatever the FD in F2, that must be covered by F1. So vice versa it is given here.
So we have to check whatever the FD is given in set A, set F1, like A tends to C or AC tends to D and E tends to AD and E tends to H. So these are the FDs in set F. और F2 की set dependencies क्या है? A tends to CD and E tends to AH. Okay, so how you can check whatever the FD set that is covered by F1, that will be covered by F2, and whatever the set covered by F2, that should be covered by F1. Then we can say the set of FDs F1 F2 are the equivalent. Okay, so how you can check it? Coverage of FDs कैसे चेक करोगे? देखो इसके लिए what we have to do? Are you able to do? Anyone can reply please, those are able to do. समझ में आ रहा है कैसे करेंगे हम? कोई आइडिया है? हेलो, नो, यस? अरे भाई खाना तो बोल दो Yes. यार. नहीं, No, sir. चलो देखो मैं बताता हूं. अगर मेरे को ये एफडी इसमें चेक करना है तो सबका क्लोजर निकाल लो ना. फॉर F1 चेक करना है तो F1 F2 में कवर हो रही है कि नहीं है, कवरेज ऑफ F1, देन चेक द क्लोजर ऑफ A प्लस इन F2. किसमें चेक करोगे? F2 में. तो A प्लस का क्लोजर क्या आएगा? A आएगा, C आएगा. इसका मतलब A C D ये आया है ना, तो इसका मतलब इसमें डिपेंडेंसी A टेंस टू C बनेगी ना. यहाँ पे इससे A टेंस टू C भी बना सकते हो ना, A टेंस टू D भी बना सकते हो डिकम्पोजिशन से. इज इट ओके ना? तो ये डिपेंडेंसी इसमें हो रही है कि नहीं हो रही है? ये इसमें मिल गई. अब AC चेक करोगे तो AC का भी ये आ जाएगा, तो ये डिपेंडेंसी भी इसमें आ रही है. A टेंस टू C प्रिजर्व है, AC टेंस टू D इसमें आ रही है F2 में. E का चेक करो, E का क्लोजर आना चाहिए, E में AD आ जाए, तो यहाँ पे E में A आ गया और H आ गया. ये आ गया तो C आ जाएगा, D आ जाएगा. इट मींस E टेंस टू AD डिपेंडेंसी हम यहाँ पे बना सकते हैं ना, यहाँ पे. तो ये भी डिपेंडेंसी इसमें मिल गई. E टेंस टू H चेक करो, E टेंस टू H डायरेक्टली दिया हुआ है, A ऐसा तो E टेंस टू H इससे भी बना सकते हो. E टेंस टू A बन जाएगा, E टेंस टू H बन जाएगा, तो ये भी आ गई. इट मींस F1 तो सारी कवर हो रही है F2 में. अब F2 की चेक करो F1 में कवर हो रही है क्या, तो यहाँ पे चेक करो. A का क्लोजर चेक करो यहाँ पे इससे. अब किससे चेक करोगे? इससे. तो A टेंस टू CD आ जाना चाहिए, तो A टेंस टू A आ गया, C आ गया, AC आ गया, तो D भी आ गया. इट मींस यहाँ पे हम A टेंस टू CD डिपेंडेंसी बना सकते हैं. इट मींस ये कवर हो गई. E को चेक करो. E को चेक करने के लिए यहाँ पे क्या करोगे? E टेंस टू H आ गया, H से E आ गया, H आ गया. अब H आ गया और कोई आ सकता है क्या? AD आ रहा है, तो AD भी आ गया. तो E टेंस टू AH हमें को दिख रहा है, ये दोनों कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. इट मींस F1 की सारी डिपेंडेंसी F2 में कवर हो रही है और F2 की सारी डिपेंडेंसीज F1 में कवर हो रही हैं. इट मींस दीज टू सेट आर इक्विवेलेंट. ओके, Yes. समझ में आया ना मेथड? इज इट ओके ना? Yes, sir. ये चेक करो, चेक करो. F1 के लिए पहले चेक करो F1 कवर हो रहा है क्या. F1 कवर्ड बाय F2. अगर ऐसा है तो इसमें चेक करो XY का क्लोजर. किसमें चेक करना है? F2 में. चेक इन F2. XY का क्लोजर में W आ जाना चाहिए इसमें, तो XY के क्लोजर में XY आ जाएगा, Q आ जाएगा, Q आ गया तो Z आ गया, Z आ गया तो R आ गया. W आ रहा है कहीं से? No, sir. W नहीं आ रहा है.
इट मींस जब एक्स वाई ही नहीं, एक्स वाई टेंस टू डब्ल्यू ही नहीं आ रहा, इट मींस रिमेनिंग को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इट मींस दीज आर नॉट इक्विवेलेंट। इज इट ओके? ओके ना भाई? यस सर। Yes, sir. ठीक है ना? तो इक्विवेलेंट है ही नहीं, ठीक है, सारी की सारी होना चाहिए, एक भी नहीं आया तो इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि F1 की F2 में तो आ जाएंगी, लेकिन F2 की F1 में आ ही नहीं रही है, दैट मींस इट इज आल्सो नॉट इक्विवेलेंट। इज इट ओके? Yes, ओके, sir. चलो टाइम कितना हुआ है? 45 हो गया। चलो कोई नहीं, मैं स्टार्ट कर देता हूँ कैनोनिकल कवर वाला, तो नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट होगा तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ओके चलो, सो स्टैंडर्ड फॉर्म और एफडीज और कैनोनिकल कवर, सो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है, जैसे कीज से आता है ऐसे इससे भी क्वेश्चन आता है हमेशा, ठीक है, चाहे गेट एग्जाम में जाओ कहीं पे भी जाओ पूछते हैं लोग, इंटरव्यू में भी पूछते हैं, ठीक है। तो canonical cover of F is a minimal set of FDs, means sometimes we are able to minimize the number of dependencies whatever the dependencies are given. So redundant dependency we can remove, some other dependency we can remove, so we can minimize the set of FDs. So minimal set of FDs is called as a cover, where no redundant dependencies or redundant part of dependencies will be presented. So canonical cover basically denoted by the FC. Okay, FC. Okay, so a set of FDF is minimal if it is satisfy following conditions. So the following conditions are mandatory to determine a canonical cover for the given set of FD. What the condition that must be satisfied? First condition is every FD or FC is simple. It means in the RHS there will be a single attributes, like if I have written like A tends to BC, so this is not allowed in the canonical cover. We have to decompose it like in A tends to B or A tends to C. So there are simple attributes in the RHS, or there is a single attributes in the every dependencies in the functional dependencies. So it should be, instead of it should be like that. Okay, so every RHS attribute contains single attribute. Okay, first condition. Second condition, FC or what is the canonical cover, it should be left rule. What is the meaning of left rule? It set of FDs where no extraneous left attribute present. So what is extraneous left attribute, or what is extraneous attribute, we will talk about later. Just first see the condition, the second condition must be satisfied. Okay, third condition, the FC should be non-redundant. Now how we have to identify the redundant FDs in the set of functional dependencies, and then how we have to remove it. So this is one other process that we have to do, then we are able to identify a canonical cover. So these three conditions. Now next condition is each left side of functional dependencies in FC, it will be unique. It means there should be no dependencies like A tends to BC, अगर मैंने लिखा है और A tends to कुछ और भी लिखा है तो लेफ्ट साइड की भी सब यूनिक होना चाहिए, है ना। ए से मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को मत लिखो आप, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। if it not possible, then we can write, otherwise there is no need to write like that, है ना, ऐसा भी नहीं लिखा आएगा आपको। तो ये भी आपको दिखेगा A tends to BC, A tends to, redundancy नहीं होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए सारी की सारी डिपेंडेंसी। ओके, so but for this it is not mandatory, we can write like A tends to BC लिखा हुआ है तो इसका मतलब A tends to B लिखा हुआ है और A tends to C लिखा हुआ है, इट मींस इसको A tends to BC लिख सकते हो आप, इक्विवेलेंट ही है दोनों, तो इसको फाइनल में आप ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसको आप इस कंडीशन को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो, यू कैन इग्नोर दिस कंडीशन, है ना, if you are decomposing it for this first condition, it is contradictory to the first condition. So it is the last thing that we have to do. First we have to convert in the this form, then we have to identify the extraneous left attribute, then non-redundant empties, then we have to show with the combination of the FDs, like, है ना। So what is the procedures we have to follow? So these steps we have to follow. Now first we have to see what is extraneous left attributes, ये नया टर्म है और redundant नया टर्म है। So first of all we will be cover what is extraneous left attribute and extraneous attribute. Okay, so I think टाइम तो खत्म है, तो कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में अपन यहाँ से पहले स्टार्ट करेंगे एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट क्या होता है,
Then we will going for the redundant empties, identification of the redundant empties. Okay, so from there we will start in the next class, so we will cover it. Okay, and then we will try to finish it. Okay, all of you please. Yes. Okay. Yes, sir.